Good morning, students. Welcome again. Students, in the previous session, we have seen the different components present in the food. We have started this topic and we have seen the first component, that is the carbohydrate, and second one is going on, that is the fat. Okay, fats. Students, it's very much important for us to know about the various components present in the food, because we need a food and the nutrient, especially the nutrient from the food, for our building body. Okay, it means if you will not eat right, you will not make your body strong. Okay, so in this chapter, what we are learning? We are learning various components which are present in the food and that is useful for us. Okay, students, हमने देखा था कि पिछले पिछले सेशन में हमने ये देखा था कि फूड के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं वो कौन कौन से हैं, और हमने स्टार्ट किया था फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट से, उसके बाद फैट पे थे हम, है ना. सो नाउ लेट्स move forward and let's understand the various components. Okay, components or the nutrients, special word is nutrient. See student, why you have this chapter in your syllabus? Why? Because you must be aware what to eat and why to eat. क्या खाना है और क्यों खाना है, यह आपको पता होना चाहिए, इस वजह से ये चैप्टर है. Now you might have a question in your mind that कि सर सब ना थोड़ा सा theoretical हो रहा है, we need some practical also, is it? Yes, because see, science subject is totally related with the practicals, so don't worry students. First we will see the theoretical part, which components are there, then we will perform some activity based on these components. Means you have to find out, a sample of food is given to you. Now you have to find out which component, which nutrient is present in that food. For this we have the various tests, so that we will perform in this class. Okay, but first need to complete the theoretical part, that is you must know what are the different types of nutrients or the components present in the food. Okay, so in the previous video what we have seen, the carbohydrates provide us energy, and the sources of carbohydrate are rice. Okay, this is the example of carbohydrate. Then we are there at fats. So there are two types of fat. First one is saturated fat. सैचुरेटेड वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि कुछ तो भी सैचुरेटेड है, थोड़ा सा सॉलिड है. सो द फैट्स विच आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर आर कॉल्ड सैचुरेटेड फैट. ओके, सो सैचुरेटेड फैट एग्जाम्पल इज बटर. इफ यू हैव सीन द बटर जनरली प्रेजेंट इन अ सॉलिड फॉर्म, सॉलिड होता है ना, एंड वेन एवर यू हीट it up, so what happened? It melts. Okay, so generally it is solid at room temperature. Butter, ghee, they are the saturated fat. Second one is unsaturated fat. Unsaturated means the fat which are liquid at room temperature. The example is vegetable oil. Generally हम जो soybean oil, फली, then different types of ऑयल वी यूज़ फॉर द प्रिपेयरिंग फूड, है ना. फूड प्रिपेयर करने के लिए हम किचन में जो डिफरेंट टाइप्स के ऑयल यूज़ करते हैं, वेजिटेबल ऑयल्स, उन ऑयल में कौन सा फैट होता है? अनसैचुरेटेड फैट. नाउ सी द फंक्शन ऑफ फैट इज, फैट का फंक्शन क्या है? फैट से हमें क्या मिलती है? एनर्जी. इट मीन्स फैट प्रोवाइड अस एनर्जी, बट एक्सेस ऑफ फैट यानी जैसे देखो आपने अगर कुछ कंज्यूम किया है, कंज्यूम यानी कुछ खाया है ना. सपोज आई एट समथिंग, चपाती विथ यू कैन से बटर. ओके, बटर के साथ खा लिया. सो चलो ठीक है,
थोड़ी जितनी भी मुझे मेरे बॉडी को जितनी रिक्वायरमेंट थी, अगर मैंने कोई फिजिकल वर्क किया या कोई दूसरा वर्क किया तो दैट टाइम आई यूटिलाइज दैट फैट बिकॉज इट्स प्रोवाइडिंग अ एनर्जी. बट इफ आई एम नॉट डूइंग एनी वर्क, आई एम जस्ट रिलैक्सिंग एट होम and there is no physical exercise, so what will happen? This excessive fat will convert in the obesity like this. You have seen many people are just like obese, they never try, they never able to walk properly, they dried up very fast, बहुत जल्दी थक जाते हैं. they ड्राइड अप का मतलब ही वही होता है कि बहुत ज़्यादा थक जाना. उसके बाद अगर उन्हें कोई काम करने बोला जाए तो दे आर नॉट एबल टू डू बिकॉज ऑफ द ओबेसिटी. बट मेक श्योर दैट यू नेवर say anything bad to such people because it's not their fault, it's a medical condition you can say which leads to obesity. So excessive fat, done. So excessive fat leads to obesity. Now that fat may be a saturated fat or unsaturated fat, चाहे वो saturated fat हो या unsaturated fat हो, उससे obesity हो सकती है. Done. So what you have to understand here, the second important nutrient or the component present in the food is fats. Done. Next is protein. Protein. You might have heard that कि अरे इसको प्रोटीन की कमी है, इस प्रोटीन बहुत ज़्यादा खाता है. प्रोटीन 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 इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट प्रेजेंट इन द फूड एंड दैट नीड्स आवर बॉडी, है ना. दैट नीड्स बाय आवर बॉडी. हमारे बॉडी को उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. वाई? बिकॉज most of the muscles are made up of vitamins. Okay, sorry, most of the muscles are made up of protein, not vitamins. I jumped the fourth, don't worry, it's third. Most of the muscles are made up of proteins. Okay, even our blood is also made up of protein. Okay, I'll show you one picture, just a second. Okay, student, see this picture. What you have seen? See there. In this picture you have eggs, milk, meat, pulses. Okay, these four food items are there. So these four are rich in proteins. Okay, these four are rich in proteins, and if you eat among four, इन चारों में से अगर आप जो भी खाते होंगे अपने खाने में अगर इंक्लूड किया होगा, जैसे देखो कई बार तो हम मिल्क डेली पीते ही है ना. पीना चाहिए क्योंकि क्या होता है, उससे हमारे बॉडी को प्रोटीन मिलता है. साथ में पल्सेस बहुत ज़्यादा खाने चाहिए, स्पेशली स्प्राउटेड फूड खाने चाहिए, है ना. आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में बोला था कि स्प्राउटेड जो फूड होता है, यानी जैसे देखो यहाँ पे पल्सेस रखे हुए हैं, तो इन पल्सेस को अगर स्प्राउट निकाल के अगर आपने खाया तो उससे हमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स मिलते हैं. एग में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, मीट में प्रोटीन होता है. अब कुछ लोग ना वेजिटेरियन होते हैं तो शायद वो मीट नहीं खाते होंगे, सो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम. ऐसा कुछ नहीं है कि प्रोटीन के लिए हमें मीट ही खाना होगा. यू कैन ईट other things that like pulses and you can drink sufficient amount of milk for getting what? Protein. So students, you have seen the picture in which you saw milk, fish, pulses and nuts are there, which are rich sources of what? Proteins. And see, this protein is needed by our body for worn out tissues. जहाँ पे हमारे बॉडी को रिपेयरिंग या फिर हमारे बॉडी में नए सेल्स जनरेट करने की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए प्रोटीन्स की ज़्यादा ज़रूरत होती है ना. यानी प्रोटीन्स का यूज़ करके हमारी बॉडी खुद को रिपेयर करती है. इवन कहीं हमें अगर इंजरी हो गई, इफ़ यू गॉट इंजरी, अ कट, छोटा सा एक कट लग गया, है ना. सो आपने देखा होगा आफ्टर सम टाइम्स इट गेट रिपेयर्ड, है ना. ठीक हो जाता है, निशान रह जाता है बट ठीक हो जाता है. तो क्यों ठीक होता है? बिकॉज ऑफ द प्रोटीन्स. मोस्ट ऑफ आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स. दैट्स व्हाई प्रोटीन इज वेरी मच नेसेसरी.
अगर आपको अच्छे से ग्रो करना है, क्योंकि देखो बेटा, यू आर इन अ ग्रोइंग और ट्रांसफॉर्मिंग फेज। ट्रांसफॉर्मिंग फेज का मतलब ये है, आप अभी एक छोटे बच्चे से अडल्ट तक बढ़ते ही जाओगे, है ना। आपकी बॉडी ग्रो करेगी, तो बॉडी ग्रो करेगी इसका मतलब नए नए सेल्स बनते जाएंगे, नए नए टिश्यूज डेवलप होंगे। तो जब ऐसे सेल्स बन रहे हैं तो सेल्स बनने के लिए क्या चाहिए? प्रोटीन। अब प्रोटीन हमें कहाँ से मिलेगा? फूड से। इसीलिए प्रॉपर फूड खाना और अच्छे अमाउंट में, जितनी अमाउंट की हमारे बॉडी को ज़रूरत है उतने अमाउंट में खाना बहुत नेसेसरी है। ओके, इट्स वेरी मच नेसेसरी। इफ़ यू ईट sufficient amount of protein in your food, then only you can grow properly. आपने देखा होगा बेटा कि there are so many places in the world, many people, or you can say especially the child, suffering from malnutrition. malnutrition का मतलब क्या होता है? जब भी जितनी न्यूट्रिशंस उनको मिलने चाहिए, इंक्लूडिंग प्रोटीन एंड अदर्स, वो अदर्स भी, ठीक है, अगर उतने प्रोटीन्स उनको नहीं मिले तो ऐसे बच्चों की ग्रोथ नहीं होती, काफ़ी वीक हो जाते हैं, कोई काम नहीं कर पाते, और कई बार तो ऐसे बच्चों की डेथ भी हो जाती है ना। तो इसीलिए बेटा हमेशा क्या करना चाहिए? सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फूड खाना चाहिए। और फूड सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही चीज़ खा लिए, नहीं, हमें फूड में डिफरेंट टाइप के फूड आइटम्स खाने चाहिए, डिफरेंट टाइप्स के वेजिटेबल्स यूज़ करने चाहिए, डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स खाने चाहिए, स्पेशली फ्रूट्स तो ज़्यादा से ज़्यादा खाने चाहिए, है ना। और अकॉर्डिंग टू सीज़न, जैसे जैसे सीज़न चेंज होता है वैसे वैसे डिफरेंट सीजन्स में डिफरेंट सीजनल फ्रूट्स भी अवेलेबल होते हैं। जैसे देखो, आपने देखा होगा अभी समर सीज़न शुरू था, है ना। समर सीज़न शुरू था ना, तो समर सीज़न में कौन सा फ्रूट आता है? मैंगो, है ना। बहुत सारे लोगों का फेवरेट भी होगा। सो यू मस्ट ईट मैंगो सो दैट the nutrient which are obtained from the mango, it can be supplied to your body. Okay, and जो seasonal fruits होते हैं, don't avoid them, eat in a sufficient manner. Okay, so now let's move forward. So protein very important for muscle building, for building our body. Okay, so protein, milk, and the sources of protein is milk, fish, pulses and nut. Okay, these are the sources of protein. Now next one is what? Vitamin. Okay, we have seen carbohydrates again, okay, then fats, then protein. Now next one is vitamins. vitamins की आपने बहुत नाम भी सुने होंगे, ऐड भी आते हैं कि देखो हॉर्लिक्स खाओ, ये खाओ, वो खाओ, पता नहीं क्या क्या ऐड आते हैं, बोलते हैं इसमें आपको प्रोटीन मिलेंगे, विटामिन मिलेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा हमें कहाँ से मिलता है? हम जो रोज़ खाते हैं, जो फूड खाते हैं, वहीं से हमें बहुत सारे विटामिन्स मिलते हैं। अब ये जो विटामिन्स होते हैं ना, बहुत अलग अलग टाइप के विटामिन्स होते हैं, ठीक है। विटामिन्स के अगर नाम देखेंगे तो देखो आपको यहाँ समझ आ रहा होगा, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, देन विटामिन B1, B2, ओके, विटामिन B1, B2, B3, B12, फॉलिक एसिड, विटामिन सी, ऐसे बहुत सारे विटामिन्स आपको बहुत सारे विटामिन्स के बारे में स्टडी करना है। ओके, अब देखिए सबसे पहले विटामिन्स जो होता है, विटामिन्स का काम क्या होगा? चलो, इन सभी के वर्क तो हमें पता चल गया, कार्बोहाइड्रेट्स का क्या था, फैट का क्या था, प्रोटीन का। विटामिन का क्या काम होगा, क्या लगता है आपको? विटामिन का काम होता है फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी, और यू कैन से प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स, है ना। आपने जैसे सुना होगा कि कोई कहता है कि नहीं ये फ्रूट्स खा लो तो आपको ऐसे ऐसे विटामिन्स मिलेंगे जिससे आपकी आइज़ अच्छी रहेगी, कोई बोलता है नहीं ये विटामिन खा लो तो अच्छा रहेगा। अभी रिसेंट में एक चल रहा था, आपको याद है क्या? कोरोना, इज इट? यस, द वेरी डेंजरस वायरस, कोरोना वायरस, एंड ड्यू टू दिस वी हैव दैट पेंडेमिक कोविड-19, है ना। पेंडेमिक का मतलब क्या होता है? महामारी, है ना, वैश्विक महामारी। तो ये पेंडेमिक जो थी, पेंडेमिक कौन सा? कोविड-19 नाम दिया गया था उसको, कोरोना वायरस डिसीज 19, कोविड-19। तो ये कोविड-19 जब बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुआ था अराउंड द वर्ल्ड, तो इंडिया में भी स्प्रेड हुआ, लेकिन इंडिया में आयुर्वेद वगैरह काफ़ी ज़्यादा मानते हैं। तो क्या बोला गया था कि यू मस्ट ईट सिट्रस फूड।
सिट्रस। अब ये सिट्रस क्या होता है, बहुत इजी तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वेनेवर यू टेस्ट समथिंग, है ना, कोई भी ऐसे फ्रूट को टेस्ट करो, और अगर वो कैसे थोड़ा सा खट्टा है ना, थोड़ा सा सोर टाइप का अगर थोड़ा सा क्या टेस्ट आएगा, सो इट इज सिट्रस फूड। एग्जाम्पल लेमन, लेमन सिट्रस फूड, ऑरेंज citrus food, then you have what, lemon, orange, again whatever the fruits which are so to taste, और you can say हिंदी में हम बोलते हैं थोड़े से खट्टे जो लगते हैं हमें, है ना, ऐसे सिट्रस फूड खाने चाहिए। तो उससे क्या होता है, हमारी इम्यूनिटी पावर काफ़ी स्ट्रांग होता है, और इम्यूनिटी पावर अगर स्ट्रांग हो गया सो वी कैन फाइट अगेंस्ट दैट कोविड-19। इज इट? यस। तो देखो हमारी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स है, और अलग अलग ऑर्गन्स को अलग अलग विटामिन्स की ज़रूरत पड़ती रहती है। जस्ट लाइक आर आइज़ को सबसे ज़्यादा विटामिन ए की ज़रूरत पड़ती रहती है। तो व्हाट यू मस्ट ईट, द फ्रूट्स विच कंटेन्स द विटामिन ए। फॉर एग्जाम्पल एप्पल, कैरेट, है ना, कैरेट आपने खाया होगा ना, गाजर, मूली, सब जितनी भी ये जो ऐसे है ना, इससे क्या मिलता है, विटामिन ए। विटामिन ए से हमारी आइज़ काफ़ी अच्छी प्रॉपर फंक्शनिंग करती है। एक थोड़ा सा अजीब बात बताओ, बहुत ही यू कैन से अमेजिंग फैक्ट है, आपको पता है एक ऐसा विटामिन है जो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। फ्रूट, डिफरेंट फ्रूट से तो मिलता ही है, लेकिन हम फ्रूट्स के अलावा उसको फ्री ऑफ कॉस्ट एक हमारे जो बेस्ट फ्रेंड है उनसे भी हम ले सकते हैं। कौन सा विटामिन? यस, विटामिन डी। विटामिन डी ऐसा है जो हमें सनलाइट से मिलता है। सन इज अ गुड फ्रेंड ऑफ अस, है ना, सन से तो हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती है, सनलाइट मिलती है, हीट मिलता है, लाइट मिलती है, कितनी सारी चीज़ें मिलती है ना। तो इनसे हमें एक बहुत अच्छी चीज़ मिलती है, दैट इज विटामिन डी। वेन एवर यू सीट for few minutes, not whole day, for few minutes in a sunlight you will get a vitamin D। एक्चुअली आपको विटामिन डी होता है सनलाइट में, विटामिन डी प्रिपेयर होता है आपकी स्किन पे। अंडरस्टूड? सो विटामिन डी देखो फ्री में मिलता है, हम तो कभी लेते नहीं, लेकिन लेने चाहिए। अब जैसे देखो विंटर जब शुरू होगा ना, तो मॉर्निंग में थोड़ी देर धूप में अगर आप बैठ जाओगे 10 मिनट्स 15 मिनट्स, so you will get विटामिन डी, and that is very much necessary। Understood? So now come back. So here vitamins, there are two types of vitamins. First one is fat soluble vitamins, second one is water soluble vitamins। फैट soluble and water soluble ये कैसे, यानी किस तरीके से इसको डिवाइड किया गया है, हाउ यू विल डिफ्रेंशिएट देम। सी दीज विटामिन्स विच आर स्टोर्ड इन आवर बॉडी इन अ फैट टिश्यू, फैट टिश्यू में जो स्टोर्ड होते हैं उसे हम कहते हैं फैट सॉल्यूबल विटामिन। फैट सॉल्यूबल यानी ऐसे विटामिन जो हमारे बॉडी में फैट टिश्यू में सेव रहते हैं, या फिर हम बोलते हैं स्टोर्ड रहते हैं, एंड आवर बॉडी यूटिलाइज इट, और उसका यूज़ करती है हमारी बॉडी कब, जब उनको ज़रूरत होती है तब। तो ऐसे विटामिन्स को हम कहते हैं फैट सॉल्यूबल विटामिन। सेकेंड होता है आपका वाटर सॉल्यूबल विटामिन। वाटर सॉल्यूबल विटामिन्स, अब ये विटामिन्स जो होते हैं ये स्टोर्ड नहीं रहते, इट रेगुलरली सप्लाइड टू आवर बॉडी थ्रू आवर फूड। ओके, फूड के थ्रू हमें मिलते रहता है। विच आर दे? B1, B2, B3, B12, फॉलिक एसिड, विटामिन सी, ये हमारे बॉडी को रेगुलरली लगते रहते हैं। ओके, सो फैट सॉल्यूबल एंड वाटर सॉल्यूबल विटामिन्स। अब जैसे देखो ये जो वाटर सॉल्यूबल विटामिन्स होते हैं, ये विटामिन्स हमें लीफी वेजिटेबल्स एंड अदर वेजिटेबल्स से रेगुलरली सप्लाई टू आवर बॉडी। ओके, सो फैट सॉल्यूबल विटामिन्स एंड water soluble vitamins। So fat soluble and water soluble vitamins, students, there are 13 there are 13 vitamins, and these are required to our body for proper functioning, just like eyes, gums, teeth and other
organs. Okay, so now see, fat soluble vitamins, again I am repeating everything related with the vitamin. That is, fat soluble vitamins are stored in a fat tissue and our body uses it whenever it is needed. Okay, जब भी जरूरत पड़ती है तब उस फैट में जो स्टोर है, फैट टिश्यू में जो स्टोर विटामिन है उसका यूज़ होता है. और ये कौन से विटामिन होते हैं? ए, डी, ई एंड के. ओके, और जो डी विटामिन है, और बता रहा हूँ कि विटामिन डी हमें कहाँ से मिलता है? सनलाइट से नहीं मिलता, सनलाइट के प्रेजेंस से. ओके, वेन एवर यू सिट for few minutes in a sunlight, your body prepares vitamin D in presence of sunlight. That's why we say that we got vitamin D from the sun. Okay, but it in presence of sunlight. Now, so vitamin D is there, presence of sunlight. Now next is water soluble vitamins. These vitamins are not stored in our body but regularly supplied to our body through our food. And leafy vegetables and some dietary fibers also, they also provide these types of vitamins. Okay, नट्स या फिर जो भी हम खाते हैं उसमें से वाटर सोल्यूबल विटामिन जो है वो कंटिन्यूसली और रेगुलरली हमारे बॉडी को मिलता रहता है. तो दिस इज कॉल्ड एज विटामिन्स. विटामिन इज वेरी मच नेसेसरी. बेटा, अगर विटामिन नहीं रहेंगे तो आवर बॉडी विल नॉट फंक्शन प्रॉपरली, एंड lack of vitamin will leads to many disease. जैसे हो सकता है कि अगर आप विटामिन ए कम खाते होंगे, है ना, अगर आपके फूड में विटामिन ए कम होगा, सो योर आइज विल नॉट फंक्शन प्रॉपरली, और कुछ दिनों में फिर आपको प्रॉपरली दिखना बंद हो जाएगा, है ना. तो इसीलिए विटामिन्स को हमारे फूड में इंक्लूड करना और ऐसी चीज़ें खाना जिसमें ज़्यादा विटामिन हो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है फॉर बिल्डिंग एंड प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ योर बॉडी. बॉडी को प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए विटामिन्स की ज़रूरत पड़ती है. बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ हर किसी का फंक्शन. बेटा, कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन क्या था? प्रोवाइड एनर्जी. फैट का फंक्शन क्या था? प्रोवाइड एनर्जी. प्रोटीन का फंक्शन क्या था? बिल्डिंग द बॉडी, मसल बिल्डिंग. एंड विटामिन्स का क्या है? प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आर ऑर्गन्स और द बॉडी. ओके, तो अब ये हुए आपके what? Vitamins. So next you have to see mineral. Okay, students, see, next one is minerals. Minerals are also essential for our healthy body. The function of minerals is to maintain the healthy body. Body को healthy रखने के लिए, and formation of new bones, new teeth, blood cells, etc. Okay, यानी minerals का काम क्या होता है? हमारी बॉडी को हेल्दी रखना और साथ में कुछ चीज़ों का फॉर्मेशन करना, जैसे कि what? बोन्स का फॉर्मेशन. बोन्स के साथ साथ what? टीथ के अलावा बोन्स, टीथ, ब्लड सेल्स, है ना, इन सब चीज़ों का फॉर्मेशन का मेन फंक्शन होता है मिनरल का. ठीक है, मिनरल्स जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर्मेशन के लिए और साथ में हेल्दी बॉडी के लिए. ओके, तो अब ये जो मिनरल्स होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिनरल. द फर्स्ट वन इज मैक्रो मिनरल्स. मैक्रो, देखो बेटा, वर्ड इज मैक्रो. सो मैक्रो का मतलब होता है MACRO. मैक्रो का मतलब होता है लार्ज. MACRO, लार्ज. आपने एक और वर्ड सुना होगा ना मैक्रो के जैसे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म. माइक्रो का मतलब होता है एकदम छोटे, एक्सट्रीमली स्मॉल, कॉल्ड एज टाइनी. TINY, टाइनी का मतलब होता है वेरी स्मॉल. ओके, टाइनी. तो इसको हम क्या कहते हैं? व्हाट वी कॉल माइक्रो. और माइक्रो का अपोजिट क्या है? दैट इज मैक्रो. माइक्रो, अपोजिट ऑफ माइक्रो इज मैक्रो. मैक्रो. सो नाउ सी, minerals
which are required our body in a large amount is called macro minerals. Okay, macro minerals are the minerals which are required by our body in a large amount, that is called as macro minerals. And which minerals, which are they? The first one, calcium, magnesium, sodium, potassium. Calcium, magnesium, sodium, potassium. These are the various macro minerals which are needed our body in a large extent, or you can say large amount. ज़्यादा अमाउंट में हमारे बॉडी को इन मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है. अब जैसे देखो कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब हमारे जितने भी फूड आइटम्स होते हैं उसी के अंदर मिलेंगे. बट जैसे देखो पोटेशियम, विच इज़ द गुड सोर्स ऑफ पोटेशियम. अगर आपके बॉडी को पोटेशियम की ज़रूरत है, सो व्हाट यू विल ईट मोस्ट ऑफ द टाइम, यू विल फाइंड इट इन अ वेयर, यस, बनाना. बनाना में रहता है पोटेशियम large amount में. Okay, so if you eat banana you will get a sufficient amount of potassium. सोडियम नाम याद आ रहा है, सोडियम कहाँ रहता है? सोडियम क्लोराइड, NaCl, that is your salt. Okay, common salt. मैग्नीशियम, कैल्शियम हमें बहुत सारे ऐसी चीज़ें मिल रहती है जिसमें से हमें कैल्शियम मिलता है. फॉर एग्जाम्पल यू कैन से द ड्राई फ्रूट्स इज ऑल्सो देयर, है ना, ड्राई फ्रूट से मिल सकता है. कैल्शियम का सोर्सेज बहुत सारे अलग अलग है. सो हियर मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम एंड पोटेशियम आर द मैक्रो मिनरल्स. बार बार बोल रहा हूँ, मैक्रो का मतलब होता है लार्ज. सो द मिनरल्स विच आर रिक्वायर्ड आवर बॉडी इन अ लार्ज अमाउंट, that is called as macro minerals, calcium, magnesium, sodium and potassium. These are the macro minerals. अब जो दूसरा होता है macro minerals के अलावा, that is called as trace minerals. Trace, T-R-A-C-E, T-R-A-C-E, trace minerals. Okay, trace minerals. So which are they? Trace minerals are the minerals which required our body in a small amount. बहुत ही कम भी रहा तो भी हमारी बॉडी प्रॉपरली फंक्शन करती है. बट इट इज़ रिक्वायर्ड. कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है पूरे इसमें जो हमारे बॉडी को रिक्वायर्ड नहीं है, सभी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है. बट एज कंपेयर टू मैक्रो मिनरल्स के साथ अगर हम कंपेयर करें तो मैक्रो मिनरल्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है और ट्रेस मिनरल्स की कम होती है. ओके, सो दीज आर आयरन, जिंक, कॉपर, आयोडीन. अगेन देखो इसमें हम शुरू करते हैं. आयोडीन कहाँ से मिलता है? जहाँ से हमें सोडियम मिलता है, दैट इज सॉल्ट, है ना. कई बार आपने ऐड सुना होगा, ईट द सॉल्ट सो दैट यू कैन गेट द प्रॉपर अमाउंट ऑफ आयोडीन, बट नॉट टू मच, है ना. इसीलिए बोला जाता है कि बहुत ज़्यादा ऐसा नमक नहीं खाना चाहिए, लेकिन खाना चाहिए. लेकिन विच वन? आयोडीन युक्त नमक. ऐसा ऐड देखा होगा ना आपने, बहुत सारे ऐसे एक्टर एक्ट्रेसेस आते हैं बोलते कि आप नमक खाए लेकिन आयोडीन वाला खाए, है ना. आयोडीन वाला नमक नहीं खाओगे तो क्या हो जाएगा आपको? दिस वन, है ना, गला इतना बड़ा हो जाता है. दैट इज कॉल्ड एज गॉइटर, G-O-I-T-E-R, गॉइटर. हिंदी में क्या कहते हैं? घेंगा, है ना. यस, घेंगा. दैट इज दैट थ्रोट बिकम अ बल्की लाइक दिस, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है. दैट इज कॉल्ड गॉइटर. सो ये आयोडीन की कमी से बंद होता है ना. सो स्टूडेंट्स, वी विल सी दिस द डिफिशियंसी ऑफ द डिफरेंट विटामिन, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, ये सभी चीज़ों की जो डिफिशियंसी है उससे होने वाले डिसीज, उसका अलग से इस चैप्टर में अलग से टॉपिक हम लेंगे, है ना. एक अलग से उसका सेशन लेंगे. बट राइट नाउ वी हैव टू सी द कंपोनेंट्स ओनली. सो ट्रेस मिनरल्स आर आयरन, जिंक, कॉपर, आयोडीन. वेरियस सोर्सेस आर देयर. फ्रूट्स, स्पेशली फ्रूट्स आर देयर. फ्रूट्स में तो हमें बहुत ज़्यादा आयरन मिलता है. जैसे एप्पल से हमें आयरन वगैरह, आयरन जिंक वगैरह मिल जाएंगे. आपने जिंक का नाम कभी सुना है क्या बेटा? जिंक, yes, zincodine, zinc, yes. Whenever you are suffering from the dehydration, अब क्या होता है? आपने देखा होगा गर्मी में बहुत ज़्यादा हमें पसीना निकलता है बहुत ज़्यादा. अगर हमारा पसीना निकले और हमने अगर पानी सफिशिएंट अमाउंट में नहीं पिया तो हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, हमारी बॉडी से वाटर का लेवल कम हो जाता है. तब हम जो पानी पीते हैं उसके साथ साथ कई बार बच्चों को जिंक की टैबलेट्स भी दी जाती है ना. तो जिंक वहाँ यूज़ होता है. डन. सो हम ये हर चीज़ देखने वाले हैं, डिफिशियंसी और उससे हम कैसे रिकवर करें, ये सब चीज़ें. सो ट्रेस मिनरल्स. ओके, सो आयरन, जिंक, कॉपर एंड आयोडीन आर द ट्रेस मिनरल्स. एंड मिनरल्स का फंक्शन क्या होगा? टू मेंटेन द हेल्दी बॉडी
and what? Formation of bones, teeth and blood cells. This is what? Minerals. Now next one is roughage and dietary fibers. Roughage and dietary fibers. Okay, students, we will see this roughage and dietary fiber in the next session because time is not permitting us to take the more session. Okay, so I hope you have learned many things. In the next session we will see roughage and the other contents of this chapter. Okay, thank you.